Assalamu alaikum. Today we have a ninth lecture for Business Finance NGT 232, and we were studying bond valuation chapter. Let's look at the contents of the last lecture. That was bond valuation, the how and when we are going to invest in the bonds, what are the bonds, what is the bond rating, and few other things. Let's have a brief overview. What is a bond? I told you that bond is a long-term contract, or we can say that it is a long-term debt instrument. Whenever we talk about debt instrument, we are basically talking about debt financing. Why it is called debt instrument? Because the payments on the payments to be made on the investment of the bonds are fixed payments, and they are made in the form of interest, and we call them interest payments, fixed interest payments. So anything that is getting you interest in return of your investment or in return of your money is a kind of a loan. That's why we call it a debt instrument, and it is a financial instrument or a financial asset, so we call it an instrument. It's a debt instrument where we as an investor, if invest, we are going to get a fixed interest payments on the investment. So bond is a long-term debt or debt instrument or a long-term contract, and which the borrower agrees to make equal payments of principal and interest to the bondholder, and for certain period of time or specified number of years that is the maturity date, depending on the maturity date or the number of years for after which the bond is going to be matured. This was about bond. And then we look at different types of a bond, including the first one was your treasury bonds. Treasury bonds are those which are issued by the government, and there is and we consider or assume that there is no default risk, and most of the time it is on real basis. There is no certain risk in investing in the bonds issued by the government. Then we have corporate bonds, which are issued by the corporations, and there is a huge amount of risk involved in that, and it all depends on the rating of the bond, or it depends कि bond की कितनी ज़्यादा बेहतर performance है, company की कितनी ज़्यादा बेहतर performance है. Then we studied about foreign bonds. Foreign bonds were the bonds which are issued by the foreign organization, the multinational organization, or the foreign government. For example, if I am in Pakistan and I have to buy a bond issued by a multinational organization which is hosting from USA, so that means it's a foreign bond for myself. And any bond that is being issued by a French government or the government of England, that means they are issuing the bond which is foreign to me. For me, it will be a foreign bond, and I'll be a foreign investor to their government. So these kinds of bonds have a default risk, do involve the default risk. Companies may default, or the government may have some change in policies or something that may cause a bit of a risk. And further, it also has a risk of currency risk, because we are, for example, if I am buying a bond which is from a corporation which is hosting in USA, that means I'm buying a dollar bond. Or if I'm buying a bond from a company which is in the Europe country, somewhere in Europe, so it would be a euro bond. Most of the time we call the foreign bonds as euro bonds as well. So whatever investment I have made there in a multinational organization, in a foreign bond, that would be in the currency denominated in that country's currency. So wo jo bond ki currency hogi, that will be let's suppose if it's from Europe, so that would be euro, and I'll be buying the bond in euros. And if I'm investing in the amount in USA, that means if I'm going buying a bond from the company which is hosting from USA, that means I'm going to pay in my amount, or I'm going to invest in dollars. Now once I have invested and I'm going to reinvest that amount, or if still I want to get rid of my investment, I'll resell those bonds. For example, फर्स्ट टाइम जब मैंने इन्वेस्ट किया था और मेरे पास जो डॉलर की अमाउंट थी वो ये थी कि पहली दफ़ा ये था कि मैंने जी $1000 का बॉन्ड खरीदा था, वही बॉन्ड, और उस वक्त डॉलर का रेट ये था कि 1 rupee is equals to, let's say, $1, suppose. Then when it changes to 1 rupee is equals to $0.5,
तो मैं जब उसको बेचने जाऊंगी दोबारा तो वो तो मुझे 0.5 1 रुपए के लिए मुझे $0.5 मिल रहे होंगे, जबकि पहले मुझे 1 रुपये में मैंने $1 में इन्वेस्ट किया। आई हैव टू कन्वर्ट माई मनी टू डॉलर्स एंड देन आई हैव टू इन्वेस्ट। और जब मैं री इन्वेस्ट या रीसेल करने जाऊंगी तो भी मैं डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस अमाउंट को जब मैं अपने रुपये में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे ओरिजिनल उतनी अमाउंट नहीं देगा जितनी की होनी चाहिए थी। तो वो एक करेंसी रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस आते हैं, आपकी जितनी भी करेंसी के जो आपस में जितनी भी करेंसीज हैं उनके रेट में जो जो चेंजेस आते हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली आपकी फॉरेन एक्सचेंज को। और फॉरेन एक्सचेंज में आप जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें जो कि डिनोमिनेटेड इन अदर करेंसी है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट में जब भी हो कहीं ना कहीं हमारा करेंसी रिस्क इन्वॉल्व होता है। नॉट नेसेसरी कि आपकी वैल्यूज आपका रुपी जो है हमेशा डाउन ही जा रहा होगा अगेंस्ट डॉलर, या हो सकता है किसी करेंसी के अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो रहा हो रुपी। तो दैट डिपेंड्स, कहीं पे प्रॉफिट एंड कहीं पे लॉस, बट द रिस्क इज देयर. Then there were municipal bonds. Municipal bonds are basically bonds which are issued by the local government or the state, and the concept is from the USA where we have different states और वहाँ पे बहुत सारे municipal bonds issue किए जाते थे, उनकी state government की municipal committees issue करती थी। इसमें फायदा ये है कि जितने भी federal and state taxes होते थे specifically on that investment or the income you are getting from that investment in municipal bonds, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ना फेडरल का ना स्टेट का। But in case of Pakistan, let's suppose if we say that Islamabad is a state, Lahore is one of the state, and Karachi is one of the state, and then the governments within these states are issuing the bonds, या provincial government कोई bonds issue करी है वो अपने तरीके से करेंगे। हाँ, रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफॉल्ट रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि it is not backed by the federal government. That was about the type of bond. Then we did studied two more type of bonds जो थोड़ी सी इससे different और कुछ characteristics पे based थी। The first one was your coupon bond. That is the most normal kind of a bond within corporate bonds, जिसके ऊपर आपको कूपन इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है, पर ईयर फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही होती है टिल मैच्योरिटी। दैट इज योर कूपन बॉन्ड. And another is your zero coupon bond. As name indicates, zero coupon means no coupon, उसके ऊपर कोई कूपन इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है। जस्ट उसकी एक सर्टन अमाउंट आपको में आप खरीद लेते हो और एट द एंड आपको नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर कोई पेमेंट इंटरेस्ट कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता, एट द एंड आपको एक सर्टन अमाउंट मिल जाती है। जितने भी जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं वो ओरिजिनल अमाउंट से डिस्काउंट पे सेल कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर एक कूपन बॉन्ड 1000 पे इशू हो रहा है तो आपका डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो आपका नॉर्मली शायद 900 पे हो रहा हो या 800 पे हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट पे, इसलिए क्योंकि उस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलनी होती, इसलिए उसकी कॉस्ट या प्राइस जो है वो कम रखी जाती है और इसको डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो दिस इज योर जीरो कूपन बॉन्ड एंड कूपन बॉन्ड, एंड विल फाइंड आउट द एग्जांपल्स के किस तरीके से इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है। देन वी स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड. On characteristics, may we first study the coupon interest rate. Coupon interest rate basically the return on your investment, that is in the form of interest. Certain fixed interest payments जो है आप जब भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे मेच्योरिटी डेट तक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती रहती हैं. This is your coupon interest rate. And then we have the par value or the maturity value or the face value. We call all these three wordings are the same for the for one thing, that is par value कह दे, face value कह दे या maturity value कह दे, that is same. आप जब भी अपनी maturity value या par value की बात करते हो तो वो आपकी basically आप ये बात कर रहे थे कि किसमें आपने बॉन्ड खरीदे, कितने का बॉन्ड खरीदे, तो अमाउंट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट to buy a bond or the amount that is being set by the corporations for selling out their bond. तो वो जो एक certain price उन्होंने रखी होती है, par value होती है कि इस बॉन्ड की ये cost है, तो that is the amount you are going to get back on the day of maturity. So जिस दिन आपका bond mature हो जाएगा you will get that amount back and that is being promised to repaid on the maturity date by the corporations. Then we studied about the maturity date. Maturity date इतनी देर से हम बात करें, what is that? That means कि bonds आपके certain finite life के साथ आते हैं, finite period of years होते हैं. That means कि you are let's suppose अगर आपने आज bond issue किया and you are saying you are issuing the bond for 20 years, तो that means आज से 20 years हम उसमें ऐड कर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे आफ्टर 20 years आपकी मैच्योरिटी आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा. Then we talk about different provisions to call. Provisions to call were was about different call options that are being that are being options that are being as option to the bond holders and to the corporation as well.
तो आपके जितने भी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के पास एक कॉल प्रोविजन है, तो कॉर्पोरेशन अपने पास कॉल प्रोविजन इसलिए रखती है कि लेट्स सपोज अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट आपकी कंप्लीट होगी एंड यू आर गेटिंग द प्रॉफिट एज अ कॉर्पोरेशन, तो आप क्या करोगे, अपने बॉन्ड होल्डर्स को सर्टेन इंटरेस्ट पेमेंट अगले 20 साल तक देने के बजाय आप क्या करोगे, 10 साल के अंदर अंदर बॉन्ड्स को कॉल करके सारी पेमेंट्स क्लियर कर दोगे और बाकी जितनी भी रिटर्न अर्निंग्स आएंगी वो सारी की सारी कॉर्पोरेशन की अपनी होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा तब होता है जब कंपनीज इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाह रही हो और जब प्रॉफिट अर्न कर रही हो, तो बॉन्ड्स आर कॉलेबल। उनको कॉल प्रोविजन, जब भी बॉन्ड्स के साथ कॉल प्रोविजन होती है तो दैट इज कि आपके कॉर्पोरेशन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड्स बिफोर मैच्योरिटी कभी भी कॉल कर सकते हैं, बट दैट शुड बी मेंशन इन इंडेंचर। इंडेंचर इज अ डॉक्यूमेंट जो आपके बॉन्ड्स के साथ आता है। तो बॉन्ड्स के टाइम, जिस वक्त बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, उस टाइम पे ये चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपके बॉन्ड जो है उन 10 ईयर्स के अंदर कॉल होंगे और एक सर्टेन प्राइस के ऊपर कॉल होते हैं। जिस प्राइस के ऊपर बॉन्ड्स कॉल किए जाते हैं, बॉन्ड्स आर कॉलेबल इन 10 ईयर्स एट सर्टेन प्राइस, लेट्स सपोज 1040, दैट 1040 इज योर कॉल प्राइस। और वो जब, क्योंकि 1000 का बॉन्ड इशू किया गया था और 40 उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट दी जा रही है जब वो कॉल किए जा रहे हैं, तो आपको जब कॉल कर लिया, आपसे बॉन्ड्स वापस ले लिया, आपको आपके पैसे वापस किए, 1000 का बॉन्ड इशू किया गया था, 1040 आपको दिए जा रहे हैं। वो जो 40 एक्स्ट्रा अमाउंट दी जा रही है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो 1000 का बॉन्ड इशू किया गया था, 1040 जब कॉल किए गए तब दिए गए, 40 इज योर कॉल प्रीमियम एंड 1040 द होल 1040 इज योर कॉल प्राइस। नाउ लेट्स सपोज इफ बॉन्ड्स आर नॉट बीइंग कॉलेबल टिल मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी तक वो कॉल नहीं करते और कहा गया था कि 10 इयर्स के अंदर कॉल कर लेंगे, नहीं कॉल किए गए, देन वी कॉल इट as deferred call and bond holders are said to have call protection। उनके पास कॉल प्रोटेक्शन थी and they didn't call and they are protected from the call। ये तो ऑप्शन हो गया आपकी कॉर्पोरेशन के पास। दूसरा ऑप्शन होता है आपकी बॉन्ड होल्डर्स के पास। बॉन्ड होल्डर्स के पास ये है कि बॉन्ड्स आर रिडीमेबल, दैट मीन्स दे हैव कॉल रिडेम्पशन। जब भी बॉन्ड एज बॉन्ड होल्डर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप फिर भी चाहते हो कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली जाए, क्योंकि यू कैन गेट मोर इंटरेस्ट रेट, मोर रिटर्न ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट इन समवेयर एल्स इन द मार्केट। तो अब जब भी कभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं या कहीं कहीं और जगह पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा, यहाँ पे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉन्ड होल्डर्स अपने बॉन्ड्स वापस करके पैसे लेके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके एक तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, दूसरा ये कि कॉल रिडेम्पशन का ऑप्शन दिया जाए। अगर कॉर्पोरेशंस रिडेम्पशन का ऑप्शन देती हैं, जो कि तब देती हैं जब उन्होंने अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाना होता है या उनके रेटिंग्स बहुत अच्छी नहीं होती है, दे वांट टू मेक इट अट्रैक्टिव, तो वो उसमें कॉल प्रोटेक्शन का, कॉल रिडेम्पशन का ऑप्शन डाल देते हैं। इससे बॉन्ड होल्डर अपना बॉन्ड वापस देगा और अपनी ओरिजिनल अमाउंट वापस ले लेगा, और समटाइम अमाउंट थोड़ी कम भी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेशन कि वो क्या ऑप्शंस रखते हैं। Then we studied about the convertible bonds and bonds with the purchase warrants। convertible bonds यही है कि आप अपने bonds को convert कर लेते हैं शेयर पे एक certain price के ऊपर। purchase warrants के अंदर भी यही ऑप्शन है कि bond holders has the option to change the bonds into stocks। तो certain बता देते कि इतने number of bonds पे इतने number of shares change होंगे और इतनी call price है, और ये certain call price है, उस पे जो interest rate normally low होता है। Then we have income bonds। income bonds are those bonds which are going to get the income or in the interest payment only when the bond holders when the borrowers or the company is going to get the income। for example अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जब अर्न करेगी इनकम तभी वो इनकम देगी उनको, तो वो इनकम बॉन्ड्स में ऑप्शन ये होता है कि आपको सिर्फ तब इनकम मिलेगी, तभी आपको रिटर्न मिलेगा जब कंपनी अर्न करेगी। लेट्स सपोज कंपनी इज नॉट अर्निंग एनफ प्रॉफिट और कंपनी इज गोइंग इनटू लॉस, तो आपके बॉन्ड्स के ऊपर भी आपको कोई अमाउंट नहीं दी जाएगी। ये दीज आर अनदर काइंड ऑफ bonds, income bonds होते हैं। Then we studied about different legal aspects of the bond। These legal aspects, there are two basic things। The first one is your indenture and second one is your trustee। Indenture is a document which contain all the rights of the bond holders and the राइट्स ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स एंड ड्यूटी ऑफ द बोरोअर्स, द कॉर्पोरेशंस। और ट्रस्टी जो है वो वॉच डॉग या कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रखा होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को, तो एज वॉच डॉग काम करती है कि दे इंश्योर के जितने भी इंडेंचर के राइट्स एंड ड्यूटीज जो कुछ उसमें मेंशन है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी तरीके से फॉलो किए जाए बाय द कॉर्पोरेशंस, और उनके बॉन्ड होल्डर्स के राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड हो। दैट इज about different legal aspects of the bond। Then we talk about the bond ratings। The bond ratings are basically given to the bonds in order to check their probability of going into default। That means क्या probability है कि bond जो है इन companies के bond में investment करें तो वो default में चली जाएगी। We had three different types। The first one is your investment grade bond, your
स्पेकुलेटिव बॉन्ड और जंक बॉन्ड्स, एंड थर्ड वन वाज डिफॉल्ट। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड बहुत अच्छे बॉन्ड्स होते हैं, इनका रिस्क लो रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेकुलेटिव और जंक बॉन्ड, दे हैव हाई रिस्क एंड लो रिटर्न एंड लो कॉस्ट होती है उनकी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिफॉल्ट, डी किसी को अगर डी मिल गया है तो दैट मीन्स दे आर इन डिफॉल्ट, वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। सो ट्रिपल ए से लेके डी तक होता है। सिमिलरली आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मूडीज इंटरनेशनल एंड your Standard & Poor's, that are international credit rating agencies, and then we have different Pakistani credit rating agencies that include PECRA and JCR VIS. You can have a bit of research on that. Well, that was about the last lecture, and we got too much detail into the detail of this. Let's look at the bond valuation. As I always told you कि business finance करते वक्त आपके पास पेपर, पेन और कैलकुलेटर होना चाहिए। सो आज हम काफी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी के कैसे बॉन्ड को की वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है, बॉन्ड वैल्यूएशन होती कैसे। सो इफ यू डोंट हैव द पेपर एंड द पेन, गेट इट राइट नाउ एंड गेट द कैलकुलेटर विद यू, सो वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, लेट्स लुक एट बॉन्ड वैल्यूएशन, व्हाट इट इज। जब मैंने पहले भी एसेट की कोई भी वैल्यू बताई थी, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। दैट मीन्स कि जब भी कभी भी हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की किसी भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर और हम उसकी आज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि एक फ्यूचर में मुझे इतनी अमाउंट मिल सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 साल बाद इतना रिटर्न, 2 साल बाद इतना रिटर्न, 3 साल बाद इतना रिटर्न, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। इन जितनी भी रिटर्न मुझे हर 1 साल, 2 साल, 3 साल में मिलना है, उन सब की अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, तो दैट मीन्स कि वो मेरे पास वैल्यू ऑफ एन एसेट आ जाएगी। अगले कमिंग अप एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की आज प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट। सो this is how we define the bond valuation or the value of any asset। आगे भी जितने assets की value पर को find out करना है तो वो हम इसी तरीके से define करेंगे। Now when we specifically talk about bond valuation, तो bond valuation में if you can see the formula on your screen, that is VB is equals to INT into 1 minus 1 plus RD power minus n whole over RD plus MV into 1 plus RD power minus n. If you look at this thing, the n here is your number of years. Maturity value MV, when we talk about MV, that is your maturity value. When we talk about RD is your market value of interest, or we call it as required rate of return, market rate of return as well. It's RD is your market rate of return. So there is a difference in market rate of return and MV. MV is your maturity value. It is your maturity value or par value, or we call it as face value. When we talk about INT is your interest payment. That is the payment you are going to get when we talk about coupon interest rate. तो coupon interest rate वो हमें percentage rate है जिसपे हमें अपनी return मिल रहा, अपने bond के against return मिल रहा होता है। So when we talk about that coupon interest rate, तो वो actual में आपका return होता है, उसको उसकी original payment amount find out करने के लिए we call it as INT interest payment। अब ये interest payment find out कैसे होती है? Your interest rate into par value, your coupon interest rate into par value. Let's suppose if a bond is being issued at 1000, इसकी par value है, or the interest rate is let's suppose 12% is your coupon interest rate. So what we are going to INT is your par value into coupon interest rate. That would be 1000 into 12%, that would be 120. So 120 is your value of INT. ये आपकी उस पेमेंट की अमाउंट है जो आपको हर साल जो पेमेंट अमाउंट आपको मिलनी है। So here INT is that. So RD आपको पता चल गया, market rate of return or required rate of return, and is your number of years to maturity, and INT is your interest payment. When we talk about VB, तो हम value actually में find out क्या कर रहे हैं? We are finding the value of a bond. So it is the price or the value of a bond. Price or the value of a bond. So VB is your price or the value of a bond. एक चीज थोड़ी इसमें देख ली जाए कि when we talk about number of years, तो n की बात करते हैं तो number of years till maturity है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं number of years till maturity, that means जितने भी number of years आपके remaining till maturity हैं, अगर मैं
मैंने लेट्स सपोज 10 साल पहले बॉन्ड इशू किया था और मैं उसके आज 20 साल के लिए बॉन्ड इशू किया 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इशू किया था, आज उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब 10 और साल रहते हैं, टोटल 20 इयर्स की उसकी मेच्योरिटी थी। तो मैं अब अगर वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मैं एन की वैल्यू 10 लूंगी। दैट मींस अपने कमिंग अप इयर्स जितने भी हैं उन सबको, जो रिमेनिंग टिल मेच्योरिटी है, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू कंसिडर की जाती है, उनको नंबर ऑफ इयर्स कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड वैल्यूएशन। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। In 2000, PTCL issued a bond with par value of rupees 1000 at a coupon interest rate of 10% for 30 years. If the going interest rate is 10%, find the value of a bond in 2012. Now, in 2000, PTCL issued a bond with a par value of rupees 1000. अगर हम इसका data collect करें, तो first thing is, step 1 is finding out the data. अब डाटा में हम par value हमारी कितनी है, that is 1000 रुपीज। हमें पता चल गया कि बॉन्ड इशू किस पे हुए, पार वैल्यू पे 1000 के, एट अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। दैट मींस 10% इसका कूपन इंटरेस्ट रेट है, ये परसेंटेज रिटर्न जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखना है, फॉर 30 इयर्स। दैट मींस आपके 30 इयर्स इसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी है। Maturity is your 30 years. If the going interest is 10%, going interest rate means it's your market rate of return, जिसको हम RD कहते हैं. This is 10%, or you can say if the going interest rate in the market is 10%, find the value for bond in 2012. अब bond issue हुआ था 2000 के लिए, that means इसको जरा थोड़ा सा नोटिस करना है कि 2000 में बॉन्ड इशू हुआ था 30 इयर्स के लिए। दैट मींस 2030 तक बॉन्ड की वैल्यू मेच्योरिटी है। 2000 में इशू हुआ, 2030 तक मेच्योरिटी, क्योंकि 30 इयर्स के लिए बॉन्ड इशू हुआ था। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू इन 2012। दैट मींस कि 2000 से लेके 2012 तक 12 साल गुजर चुके हैं, 12 साल गुजर चुके हैं। 30 इयर्स के लिए बॉन्ड की मेच्योरिटी थी, सो वी हैव 30 इयर्स मेच्योरिटी, 12 इयर्स गॉन। अब रिमेनिंग कितने इयर्स रह गए? रिमेनिंग नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? दैट इज 18। हम 30 में से 12 इयर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 18 इयर्स बच जाएंगे। दैट मींस 2000 में बॉन्ड इशू हुआ था, 2030 तक के लिए बॉन्ड इशू किया गया है। 2012 में मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं 2012 में एंड क्या लूंगी? वो नंबर ऑफ इयर्स टिल मेच्योरिटी, नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग टिल मेच्योरिटी के नंबर ऑफ इयर्स मेच्योरिटी तक के कितने नंबर ऑफ इयर्स रहते हैं। 2000 में बॉन्ड इशू हुआ था, 30 इयर्स के लिए बॉन्ड इशू किया गया था। अगर हम 2000 में वैल्यू फाइंड आउट करते तो हम एन की वैल्यू 30 इयर्स लेते। अब हमने क्योंकि 2012 में देखना है, तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग कितने रह गए 2012 के बाद, कितने साल बाद ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। तो 2012 में खड़े हुए हुए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2030 तक कितने इयर्स रहते हैं? 18 इयर्स रहते हैं। 12 साल गुजर चुके, 18, 30 में से 12 माइनस करें, जितने साल गुजर गए, जो रिमेनिंग नंबर ऑफ इयर्स है वो इयर्स है जो कि अभी रहते हैं आपकी टिल मेच्योरिटी। तो 18 इयर्स आर द रिमेनिंग नंबर ऑफ इयर्स। So this is your n. N is equals to 18 years. So now we are going to find out value of a bond, but before finding out the value of a bond, let's find out INT. The step 1 is, this is your step 1. Step 1 is to find out the value of INT, that is your par value into coupon interest rate. That means par value is 1000, as we know from the question. This is 1000. Coupon interest rate यहाँ पे हमने define किया, this is 10%. 1000 into 10% is 100 rupee. This is the value of INT. Now step 2 is finding out the value of a bond. तो formula जो हमने last slide में पढ़ा है, that is VB is equals to INT into 1 minus 1 plus RD power minus n whole over RD plus maturity value into 1 plus RD power minus n. So value of, now this is the formula for your finding out the value of a bond. Let's put in the values. That means INT की value हमें पता है, हमने find out किया, that is 100. Let's put 100 here. 1 minus 1 plus RD, that means RD की हमारी वैल्यू कितनी थी? 1 plus 0.1, 10% थी। पावर माइनस n, n हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, that is 18 years, तो पावर 18 आ जाएगी, होल ओवर 0.1,
प्लस अब मेच्योरिटी वैल्यू क्या, अब इसको एमवी लिखो, पीवी लिखो या एफवी लिखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. फॉर्मूला में एमवी नॉर्मली लिखा जाता है, एमवी इज योर मेच्योरिटी वैल्यू और पावर वैल्यू और फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू पावर वैल्यू हमें पता है कि दैट इज 1000 into 1 plus 0.1, that would be power minus 18. If we calculate, the value would be 820.141 plus, if we find out the value of this portion, it would be 179.858, and the answer would be 999.999, which is approximately equal to 1000. So value for bond is 1000 rupee. So this is how we find out the value for bond. Formula hai, we have the values, put in the values, calculate, and you have the answer. You must have a calculator right now to calculate the value for bond. Now let's look at few more things, that is whenever we are finding out the value for bond, या जो भी हमारे पास value for bond होती है उसको interpret कैसे करना है, what kind of a bond it is. Now if we say that the bond, if the coupon interest rate is exactly equal to the market rate of return, then your value for bond will be equal to face value. आपका कूपन इंटरेस्ट रेट जब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल होगा तो आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑटोमेटिकली फेस वैल्यू के इक्वल होगी. अगर ऐसी कंडीशन हो देन वी कॉल दैट द बॉन्ड, देन वी कॉल इट एज द बॉन्ड इज एट अ पार वैल्यू, बॉन्ड इज सेलिंग एट पार वैल्यू. नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग कि हमारे पिछले वाले अगर जो अभी हमने क्वेश्चन किया आप उसमें देखें कि उसमें हमारा कूपन इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी 10% था, ये दोनों इक्वल थे. हमारी फेस वैल्यू या पार वैल्यू हमें गिवन थी 1000. हमने जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट की है वो भी हमने कितनी 999.999 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000. तो वो कैलकुलेशन की वजह से, पॉइंट्स की वजह से थोड़ा डिफरेंस आता है, वरना इट्स 1000. दैट मीन्स कि जब भी आपकी कूपन इंटरेस्ट रेट आपके मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल होगा, आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमेशा आपके फेस वैल्यू के इक्वल होगी. एंड वी विल से दैट द बॉन्ड इज सेलिंग एट अ पार वैल्यू. Now let's suppose if you say that coupon interest rate is greater than your market rate of return. Let's say market rate of return, your coupon interest rate is 12% and your market rate of return is 10%, then the value for bond, let's say कोई भी value for bond होगी, that will be greater than your 1000 value. So जो भी इसके ऊपर value find out होगी, that will be greater than the par value or the face value. And we'll call that the bond is selling at premium, or it is a premium bond. So whenever your coupon interest rate is greater than your market rate of return, your value for bond will be greater than your face value. And we say that the bond is selling at premium, or it is a premium bond. Now let's say if your coupon interest rate is less than your market rate of return. Let's say your coupon interest rate is 10%, your market rate of return is coupon interest rate is 9% and your market rate of return is 10%, then your value of a bond will be less than your फेस वैल्यू. 9% कूपन इंटरेस्ट रेट के साथ हम अगर वैल्यू फॉर बॉन्ड फाइंड आउट करें, जो भी वैल्यू आती है दैट विल बी लेस देन योर पार वैल्यू. दैट मीन्स कि अगर 9% आपका कूपन इंटरेस्ट रेट और 10% आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, दैट मीन्स कूपन इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, देन द वैल्यू फॉर बॉन्ड विल बी लेस देन 1000 and we'll say it as a discount bond, or we will say that the bond is selling at discount. So these are three conditions which we find out of for interpreting whenever we find out value for bond, we interpret it as the bond is selling at par or the bond is selling at premium or discount. If we talk about the recent question we have done, we'll say that the bond is selling at its par value. तो जो उसकी par value वही original इस वक्त bond की value है. Now let's look at few more things कि हमने ये define किया था कि there are two different kinds of bonds, corporate bonds, depending on the characteristics. The first one is your coupon bond and another one is your zero coupon bond. So let's look at the coupon bond example जो हमने भी question किया, that is similar to the coupon bond example. वो coupon bond की ही example थी. एक example और देख लेते हैं. Let's say bond C has a rupees 1000 face value. That means the face value is 1000 and provides an 8% annual coupon for 30 years. That means the annual coupon interest rate is 8% for next 30 years. The appropriate discount rate is 10%. That means मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था कि market rate of return और the discount rate is same thing. That is 10%. What is the value of the bond? What is the value of the coupon bond? The first thing is to find out the data. अब data में क्या है? Your par value is 1000
Your coupon interest rate is 8% as it is mentioned in the question. We have discount rate or the market rate of return, that is 10%. N is equals to 30 years. इसमें कुछ mention नहीं है कि आपने किस year तक अपनी value find out करनी है, बस find the value for bond, coupon bond. इसका वाला number of years जो given है हम वही लेंगे, that is 30 years. Now let's write down the question. Coupon interest rate के लिए हम same वही question use formula use करेंगे जो हमने अभी normally एक question के लिए किया है. That was also a coupon interest rate bond over RD plus maturity value into 1 plus RD power minus N. So INT is into 1 minus 1 plus RD power minus N whole over RD plus MV into 1 plus RD power minus N. Now let's look at this thing. What is the value of INT? Let's find out. Step 1 is finding out the value of INT. So INT is equals to par value into coupon interest rate. Your par value is 1000 and your coupon interest rate is 8%. That means it would be 80. So 80 is your value of INT. Putting in the values, that is 1.1 power minus 30 whole over 0.1 plus maturity value is 1000 जो आपकी par value है, 1.1 power minus 30. The answer would be 754.16 plus 57. इसकी वैल्यू आ जाएगी. The overall answer would be 811.16 rupees is the value for bond for your coupon bond. Now let's compare it according to the condition of premium, discount or par value. Now let's look at this thing. The value of a bond, your coupon interest rate is less than your market rate of return, that is 8% is less than 10%. Your value for bond will automatically be less than your face value. That means कि आपका कितनी आई value, 811 is less than your 1000. See, whenever your coupon interest rate is less than your market rate of return, your value for bond will be less than your face value. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी मेरी, अगर मेरा coupon interest rate market rate of interest से कम है, that means कि मुझे इतनी amount, जितना original में sell हो रहा है par value, उससे थोड़ा कम amount मिलेगी. The bond is selling at discount with these conditions. So this is the example for your coupon bond. Let's look at another question, that is your zero coupon bond. Zero coupon bond के बारे में थोड़ा सा कुछ एक timeline से थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं. मैं पहले आपको समझा दूं and then we'll move on to it. Let's suppose it's your timeline जिसमें आप number of years हैं और ये forever आगे जितने भी let's say 10 years or 12 years जितने भी years हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की इस बॉन्ड में. लेट्स सपोज अगर नॉर्मल उसकी कूपन बॉन्ड की वैल्यू 1000 थी तो इसकी शायद आपको 100 रुपीस के अंदर ये बॉन्ड मिल रहा था, आपने खरीद लिया. अब इसकी जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट इज 0%, दैट मीन्स यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग इन दीज कमिंग अप ईयर्स, तो यहाँ पे आपकी कोई वैल्यूज भी नहीं आएंगी. लेट्स से इसकी जो मेच्योरिटी थी वो 6 years तक थी, तो जो 6th year होगा इस पे जाके यू आर गोइंग टू गेट सम अमाउंट, दैट लेट्स से यू आर गोइंग टू गेट 70 रुपीज एंड प्लस योर प्रिंसिपल अमाउंट. तो आपको ओरिजिनल में कितना मिल रहा होगा 870. आपको कोई परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं मिला सालों तक, लेकिन आपको इतना पता है कि डिस्काउंट पे आपने खरीदा था 800 का. आप जब आगे जाके उसको वो बॉन्ड मेच्योर होगा तो मेच्योरिटी अब पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इकट्ठी मिलेगी या सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर. लेट्स से इफ दैट रिटर्न इज 70 ऑन योर 800 इन्वेस्टमेंट, तो आप 70 तो आपको मिलेगा एज प्रॉफिट, प्लस आपकी ओरिजिनल अमाउंट भी मेच्योरिटी पे वापस हो जाती है, दैट इज 800. तो यू ओरिजिनली गेटिंग 870 ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 रुपीज. ये कूपन बॉन्ड के जीरो कूपन बॉन्ड की एग्जाम्पल है, या आप कह सकते हैं कि उसकी explanation है.
So this was the example of your zero coupon bond. तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करोगे किस तरीके से ही चलता है. अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें कि how we are going to find out the value of a zero coupon bond. Let's look at a question. Bond Z has a rupees 1000 face value and a 30-year life. That means उसकी जो par value है, face value, that is rupees 1000, and it has a 30-year life. The appropriate discount rate is 10%, and what is the value of a zero coupon bond? Let's say कि आपकी 1000 का bond issue किया गया था. 1000 आपकी par value या face value थी, and a 30-year life, that means the number of years is 30. The appropriate discount rate is 10%. That means this is the value of RD. What is the value of a zero coupon bond? Zero coupon bond की वैल्यू क्या होगी? Zero coupon bond में क्योंकि हमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिल रही होती, तो हम कहीं पे भी उसको इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते. हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, that is value of a bond is equals to maturity value into 1 plus RD power minus n, where minus n is the number of years till maturity for the zero coupon bond, RD is your required rate of return for the zero coupon bond, NV is the maturity value of the bond, and VB is the value of a zero coupon bond. तो क्योंकि हमारा बॉन्ड जी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से द फर्स्ट थिंग टू डू इज डाटा. इसमें आपकी योर पार वैल्यू इज इक्वल्स टू 1000, योर आरडी इज इक्वल्स टू 10%, योर मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू, वो आपको पता है कि पार वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही चीज होती है, दैट इज 1000, और number of years n is equals to 30 years, and you are going to find out value of a bond. अब इसमें क्योंकि हमने INT तो फाइंड आउट करना नहीं, तो स्टेप 1 ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है. यू आर डायरेक्टली गोइंग टू डू द स्टेप 2, दैट इज इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं फॉर द जीरो कूपन बॉन्ड. सो वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.1 पावर माइनस 30. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट वुड बी 1000 इंटू 0.057, दैट इज इक्वल टू 57 रुपीज. So value of a zero coupon bond with a par value of 30 years and discount rate of 10%, the value of a bond is 57 rupees. So this is how you find out the zero coupon bond. इसका डिफरेंस आपके ओरिजिनल कूपन बॉन्ड से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट है. उसमें हम इंटरेस्ट फैक्टर के साथ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम विदाउट इंटरेस्ट फैक्टर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और इसमें भी देखा जा सकता है कि आपका डिस्काउंट पे हो रहा है, नॉर्मली इट इज सेल एट डिस्काउंट फ्रॉम योर ओरिजिनल वैल्यू या original discount rate. Then we find out the value of a bond with semi-annual compounding. Now let's suppose compounding, जैसे कि हमने time value of money के क्वेश्चन में चैप्टर में फाइंड आउट किया था, frequency of compounding, number of frequency, वो उसमें हम क्या करते थे कि जी number of years है, अगर annual basis है तो 1, semi-annually है तो 2, और एनुअली है तो क्वार्टरली है तो 4, मंथली है तो 12, एंड इफ इट्स डेली देन इट्स 365. क्योंकि बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पेमेंट नॉर्मली डेली या मंथली नहीं मिलता, हाँ क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली मिल सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बॉन्ड्स आर एनुअली और सेमी एनुअली. अगर हम सेमी एनुअली की बात करते हैं तो दैट मीन्स हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, साल में 2 दफा. और मैंने बताया था कि जब भी कंपाउंडिंग होती है तो आपकी 2 चीजों में चेंज आता है, 1 इज योर इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड इज योर नंबर ऑफ ईयर्स. इन दैट केस हमारे जितने भी इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, यहाँ हमारा INT है, वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे, और आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. बॉन्ड C has a rupees 1000 face value and provides an 8% semi-annual coupon for 15 years. The required rate of return is 10%, that is the annual rate. What is the value of the bond? So bond C has rupees 1000 face value. So let's look at the data. आपकी par value कितनी है? 1000 rupees. Your coupon interest rate is 8% to be paid semi-annually, that means साल में 2 दफा. Number of years is equals to 15 years. The required rate of return is 10%, that means RD is equals to 10%. You have all the values. Just remember that it is a semi-annual bond. So let's look at the formula कि जब हम value of a bond semi-annually find out कर रहे हो तो किस तरीके से होगा. Slide से changes है. INT divided by 2, 1 minus
1 प्लस आर डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, पावर -2n, आपका n मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, एंड फिर आर डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू 1 प्लस आर डी डिवाइडेड बाई 2 होल पावर -2n। सो आपके फॉर्मूला में सिर्फ स्लाइड से चेंज आएगा, आई एन टी डिवाइडेड बाई 2 आर डी डिवाइडेड बाई 2, और आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएंगे। सो वैल्यू फॉर बॉन्ड फाइंड आउट करते हैं। लेट्स पुट इन द फॉर्मूला वैल्यूज इन द फॉर्मूला। द फर्स्ट थिंग इज आई एन डी। अब स्टेप 1 हमारा क्या है? फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ आई एन टी। आई एन टी इज इक्वल्स टू पावर वैल्यू इंटू कूपन इंटरेस्ट रेट। Par value is 1000, coupon interest rate is 8%, that means the value of INT is rupees 80. So यहाँ पे आपकी INT की वैल्यू आएगी that is 80 डिवाइडेड बाय उसको 2 कर देंगे। 1 फॉर्मूला में ही 2 करें, अलहदा भी अगर आप करते हैं INT डिवाइडेड बाय 2 तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है। अगर आप फॉर्मूला में आके मतलब INT की वैल्यू लिखते हैं और फिर डिवाइड करते हैं फॉर्मूला में आके, तो फिर ज़्यादा कोशिश करें फॉर्मूला में लिखें, अलहदा से उसको डिवाइड करके फिर लिखना तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ सेमी एनुअल बॉन्ड वैल्यूएशन। 1 प्लस, अब आर डी कितना है? 10%, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 15, तो -2 इंटू 15 होल ओवर 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू इज 1000, दैट मीन्स 1 प्लस 0.1 divided by 2 power -2 into 15. So if we find out the value of the first thing, that would be, so 80 divided by 2 would be 40. If we calculate the value of this whole thing would be 15.373 plus 1000 into 0.231. If we calculate it more, the answer would be 614.92 plus 231. So the final calculation, with final calculation we find out the value for bond is rupees 845.92. So this is the value of a bond for a semi-annual compounding. तो आपकी semi-annual compounding हो, that means interest payment आपने साल में 2 दफा करनी है और आपकी value for bond के अंदर भी change आता है। अगर हम अब ये देखें कि ये जी par value पे था या discount था या premium bond था, तो par value 1000 थी, original value for bond कितनी आई? 845.92, that means bond is selling at discount value. ठीक है, ये आपकी bond valuation with semi-annual compounding है। Okay, so whenever we talk about the investment and its return, so the next topic we are going to study is your bond yield. That means कि आप जब भी return की बात करते हो या अपनी investment की बात करते हो, first time whenever I say कि do the investment, or I'm going to do this investment, or you are planning to do investment, the first thing that comes into your mind is the profit or the return you are going to get on your investment. So जो भी आप अपनी investment के ऊपर return लोगे, that is the form of a profit or the return आप जिसकी बात कर रहे होते हो। अब जब आप उसको रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हो तो उसको हम यील्ड कह देते हैं। सो व्हाटएवर द रेट ऑफ रिटर्न और द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है, दैट इज यील्ड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यील्ड। तो यील्ड आपका परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है। जब हम बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि व्हाटएवर अमाउंट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स and whatever return we are going to get in the investment of bonds, तो वो आपका bond yield हो जाएगा। तो the rate of return we are going to earn on the investment in the bonds is your bond yield. So certain percentage return आपको बता देता है आपकी bond yield. Let's look at a few things कि क्या process होता है आपकी investment in the bonds और उससे return आने का। The first thing is your investor. If you look at the स्क्रीन, तो आपके पास स्लाइड्स के अंदर एक इन्वेस्टर बना रहे हैं। लेट्स सपोज इफ यू आर दिस इन्वेस्टर, इफ दिस काइंड ऑफ कार्टून इज यू, इफ यू आर दिस कार्टून एंड यू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी, जितना उसके हाथ में पैसे हैं वो सब, इफ यू आर द इन्वेस्टर एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन द बॉन्ड्स एंड यू हैव द प्लानिंग कि आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है टू गेट द फिक्स्ड रिटर्न। आप वो इन्वेस्टमेंट करते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन द फर्म्स। तो क्योंकि आपकी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज कॉर्पोरेशंस या फर्म्स अपने बॉन्ड्स इशू करती है फॉर डेट फाइनेंसिंग, जो कि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। डेट फाइनेंसिंग करती है, डिसीजन ये हुआ है कि जी बॉन्ड्स इशू करेंगे, बॉन्ड्स के थ्रू डेट फाइनेंसिंग करनी है।
बॉन्ड्स इशू किए गए, फर्म बॉन्ड इशू करिए, आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसे एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन दोज बॉन्ड्स, तो आप उसके बॉन्ड्स खरीद लोगे. व्हाट वुड बी द प्रोसेस कि यू आर गोइंग टू गिव फंड्स टू द कंपनी और द फर्म इन रिटर्न इज गोइंग टू गिव यू द बॉन्ड्स. बॉन्ड क्या है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड इज द सर्टेन अमाउंट ऑफ योर piece of paper, that contract. एक certain amount of आपके रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1000 का बॉन्ड था, and this is what आपका बॉन्ड होल्डर इसको ले लेगा. दिस इज काइंड ऑफ अ बॉन्ड. आप कंपनी को दोगे फंड्स, वो पैसे जो आपके पास हैं, आपके हाथ में इस वक्त पकड़े, वो आपने उठा के फर्म को दे दिए, कंपनी को दे दी, कंपनी से उसके अगेंस्ट आपने बॉन्ड्स खरीद लिए. अब बॉन्ड्स आपने खरीद लिए, पीस ऑफ पेपर, आपको क्या फायदा हो रहा है? अनटिल अनलेस यू आर गेटिंग रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, या आपने फंड्स, आप किसी को एवी इन्वेस्टमेंट क्यों दे दोगे? तो द रिस्क इज इन्वॉल्व. सो आप वो जो कैश अमाउंट, ये फंड्स आपने दिए हैं टू द फर्म्स और द कंपनी, और इन रिटर्न आपने उनसे बॉन्ड्स लिए हैं, तो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू आर गोइंग टू गेट a return in return of your investment is your interest payment. तो आप किसने interest payment में करते हो? Now let's see this interest payment. You are going to invest certain amount. You are going to give that cash to the corporations. Corporation in return going to give you the bonds. But along with the bond, जो piece of paper है, per year basis पे आपकी original जो हमने cash उनको या funds दिए, जो भी investment किए उसके ऊपर return देंगे. That kind of return is your interest payment. और वो interest payment की form में आता है. Interest payment आपका INT जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आपकी certain percentage find out हो जाएगी, इस percentage के ऊपर आपको आएगा. अब ये हमें ये फाइंड आउट करना कि इतनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगले साल के लिए इतना रिटर्न, इतनी कूपन इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे पूरे ओवरऑल ईयर्स में कितनी परसेंटेज रिटर्न आ रही है. वो जो परसेंटेज रिटर्न होता है उसको हम यील्ड कह देते हैं, और वो आपके मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के अगेंस्ट होती है. मार्केट में इतना रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा. दिस इज योर यील्ड और रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस इज योर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. सो आप कंपनी को कैश देते हो या फंड्स देते हो, यू आर गोइंग टू गेट द बॉन्ड्स, एंड इन अलोंग विद द बॉन्ड्स यू आर गोइंग टू गेट द इंटरेस्ट पेमेंट. और जब बॉन्ड मेच्योर हो जाएंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ, उस साल के इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ और सारे ईयर्स के इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज योर फिक्स्ड पावर वैल्यू, जो आपने पहले बॉन्ड्स जिस वैल्यू के ऊपर खरीदा था और फंड्स दिए थे, वो फंड्स आपके पास वापस आ जाते हैं. आपने इन्वेस्टमेंट की, कंपनी को फंड्स दिए, उनसे बॉन्ड्स खरीदिए, उसके रिटर्न में जितने टाइम तक आपने बॉन्ड अपने पास रखे और कंपनी ने अपने पास पैसे रखे, उतने टाइम तक यू आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट पेमेंट, यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न और द यील्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट. जब ही उसकी डेट मैच्योर होगी, आप बॉन्ड्स वापस कर दोगे कंपनी को, और अपने ओरिजिनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की थी वो वापस ले लोगे. दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड यील्ड. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू मोर थिंग्स. बॉन्ड यील्ड इज द यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल. Two kinds of bond yield hai. The first one is if you are going to earn the return on bonds held till maturity, it is defined as your YTM or yield to maturity. So आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट की आपकी इंटेंशन ये, you are going to get you are going to keep that investment or the bonds till maturity. जब तक अगर 30 years की maturity है तो 30 years तक आप अपने पास बॉन्ड रखोगे. 30 years अपने पास बॉन्ड रखने के आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितनी परसेंटेज इस सर्टेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज देखते हैं, एक्सपेक्टेड INT की वैल्यू देखते हैं, देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज द यील्ड वी आर गोइंग टू गेट. तो वो यील्ड और द रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू आर कीपिंग द बॉन्ड्स टिल मेच्योरिटी, अपने पास रखते हो और एज्यूम ये करते हो कि बॉन्ड अगर टिल मेच्योरिटी रखे जाए और उसके ऊपर रिटर्न फाइंड आउट किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, तो कितना रिटर्न आएगा, दैट इज योर यील्ड टू मैच्योरिटी. तो व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड टू कॉल, अब क्योंकि बॉन्ड्स जो है उनके अंदर कॉल का ऑप्शन होता है, बॉन्ड्स आर कॉलेबल. सो व्हेनेवर बॉन्ड्स आर कॉलेबल एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यील्ड और द रिटर्न ऑन दोज बॉन्ड्स if held till call, it is called YTC और yield to call. तो yield to call आपकी वो वैल्यू है कि let's suppose आपके बॉन्ड 20 years के लिए इशू किए गए थे, 10 years के अंदर अंदर वो कॉलेबल है. 10 years तक की आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि चलो यार मेच्योरिटी तक नहीं, सपोज ये किया जाता है कि बॉन्ड जो है वो कॉलेबल है और 10 years के अंदर अंदर वो कॉल हो जाएंगे, 10th year पे वो बॉन्ड कॉल हो जाएंगे. तो YTC इज द वैल्यू कि आपने 10th year पे अगर बॉन्ड इशू होना है, बॉन्ड कॉल वापस कॉल होना है, और मैं आज अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10 years के बाद बॉन्ड कॉल हो जाना है, 10 years के टाइम पीरियड में मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न आ रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर.
फिर कंपैरिजन किया जाता है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में कि अच्छा वहाँ क्या रिटर्न आ रहा है, वहाँ क्या रिटर्न आ रहा है, दूसरी तीसरी जगह पे क्या रिटर्न आ रहा है, कितना यील्ड आ रहा है, फिर कंपैरिजन करने के बाद इन्वेस्टमेंट की जाती है. सो द अजम्पशन इज कि अगर बॉन्ड्स कॉलेबल है 10 ईयर्स के अंदर अंदर 10 ईयर्स तक अगर मैं बॉन्ड्स हेल्ड करूँ अपने पास, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न मुझे मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, दैट इज योर यील्ड टू कॉल. और हम बॉन्ड यील्ड फाइंड आउट करते हैं फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी इफ बॉन्ड्स हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड yield to call when if the bonds are held till call. Or most of the time this yield is used by the investors to consider different bonds. अब एक बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट, दूसरे में भी, तीसरे में भी, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, तीनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेहतर कौन सी है. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द यील्ड ऑन दोज इन्वेस्टमेंट. हर एक में यील्ड फाइंड आउट करते हैं कि इधर इन्वेस्टमेंट करें कितनी यील्ड होगी, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करें कितनी यील्ड होगी, और तीसरी जगह इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी यील्ड होगी, और उनको फिर कंपेयर करते हैं जिससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न ये यील्ड आ रही होती है तो यू कंसिडर दैट ऑप्शन. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड टू गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट ऑन योर इन्वेस्टमेंट. That was all about your today's lecture. Let's have a brief summary of today's lecture. The first thing we studied was bond valuation. कि वैल्यू फॉर बॉन्ड कैसे होती है. वैल्यू ऑफ एनी एसेट और अ बॉन्ड इज सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट. जो फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज द वैल्यू फॉर बॉन्ड. और वैल्यू फॉर बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला VB इज इक्वल्स टू INT इंटू 1 प्लस RD पावर माइनस n होल ओवर RD प्लस MV maturity value into 1 plus RD power minus n. This is the formula for bond valuation. And अगर आप डेटा फाइंड आउट कर लो, स्टेप 1 फाइंड आउट करते हो कि INT होने आपके पास INT की वैल्यू होनी चाहिए, that is INT is equals to par value into coupon interest rate. You must know the number of years, the number of years remaining till maturity. तो maturity तक जितने number of years रहते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं n. आज कल बॉन्ड इशू हुआ था 10 साल के लिए, आज उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या अगर 1 साल बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स टिल मैच्योरिटी जो है वो 9 रह जाएंगे. यू मस्ट हैव अ पार वैल्यू, और पार वैल्यू के बाद आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज कूपन इंटरेस्ट रेट आपको पता होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ इयर्स पता होने चाहिए, एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए. वी हैव टू डिफरेंट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड और कूपन बॉन्ड वैल्यूएशन. अब कूपन बॉन्ड्स के लिए सेम वही तरीके जो हम सिंपल बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, सेम फॉर्मूला सेम तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट कि जीरो अगर परसेंटेज इंटरेस्ट रेट नहीं है तो फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फॉर बॉन्ड इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू इनटू 1 प्लस RD पावर माइनस n. दिस इज सिंपल क्योंकि इसके अंदर आपका परसेंटेज इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा होता. देन आपकी हम ये देखते हैं कि क्या बॉन्ड्स जो है वो पार पे सेंड हो रहे हैं, डिस्काउंटिंग में या प्रीमियम. सो इफ द वैल्यू इफ योर कूपन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू योर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, योर वैल्यू फॉर बॉन्ड विल बी इक्वल टू योर फेस वैल्यू. दैट मीन्स योर बॉन्ड इज सेलिंग एट पार. इफ योर कूपन इंटरेस्ट रेट इज greater than your market rate of return, that means your value for bond will be greater than your face value. That means bond is selling at premium. Now if your coupon interest rate is less than the market rate of return, that means your value for bond will be less than your face value. That means the bond is selling at discount, या discount bond है. ये हम फाइंड आउट करने के बाद या उससे पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि वैल्यू ज्यादा या कम आएगी. Then we find out the semi-annual coupon bond valuation कि अगर इसी में semi-annual interest payments हो, साल में 2 दफा पेमेंट हो, तो हमारी वैल्यूज में क्या चेंज आएगा, हमारे INT, RD और नंबर ऑफ इयर्स की वैल्यूज में चेंज आएगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहेगा. सेम फॉर्मूला है, VB इज इक्वल्स टू सिर्फ विद स्लाइट चेंज, VB इज इक्वल्स टू INT डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस RD पावर RD डिवाइडेड बाय 2 पावर माइनस n इनटू 2 होल ओवर RD divided by 2 plus maturity value into 1 plus RD divided by 2 whole power minus 2n. So this is your value of a bond for semi-annual compounding. Then we find out the bond yield कि आप as an investor invest करते हो, funds दे देते हो corporations को, corporations in return आपको दे देती है मार्केट आपको बॉन्ड्स दे देती हैं. वो बॉन्ड्स जो है आप कंपेयर करते हो कि यार इधर 4 जगह मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों में से बेहतर रिटर्न कौन सा आ रहा है, दैट इज यील्ड. तो आप ये फाइंड आउट करते हो कि जी रिटर्न परसेंटेज रिटर्न कितना आ रहा है. तो बॉन्ड्स आपके पास आ गए, फंड्स उनके पास चले गए, उन फंड्स या इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको पर ईयर हर ईयर या साल में 2 दफा जितने इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती रहती है. दैट इंटरेस्ट पेमेंट या आपका जो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलता है उसको हम यील्ड कहते हैं. सो बॉन्ड यील्ड आपकी इस तरीके से होती है कि आप परसेंटेज रिटर्न करते हो. तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल. YTM की जब बात करते हैं, दैट इज द यील्ड और द रिटर्न यू आर गोइंग टू अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी. अगर आप बॉन्ड्स टिल मैच्योरिटी तक अपने पास रखो तो उनके ऊपर क्या यील्ड या क्या रिटर्न आएगा, दैट इज योर यील्ड टू मैच्योरिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड टू कॉल, दैट इज व्हेन द बॉन्ड्स आर कॉलेबल. अगर बॉन्ड्स कॉलेबल हैं एंड इफ यू अज्यूम दिस थिंग कि अगर बॉन्ड्स कॉल हो जाएंगे, और टिल कॉल अगर 10 साल तक कॉल होने बॉन्ड्स, आप टिल कॉल अगर अपने पास बॉन्ड्स रखो, if you keep the bonds with you till they are called, and the return you are going to earn on that investment of bonds
held till call is called your YTC or yield to call. So this was all about your today's lecture. Let's have a brief overview of finding out that how we find out the value of a bond. So आपको अब आपके लिए आपके assignment ये है कि what you have to do is to practice the question. इसमें जो question दिए हुए you have to find out the value of a bond, coupon bond की, zero bond, coupon bond की and semi-annual compounding. और then we are going to find out YTM and YTC in the next lecture. So ये जो पिछली सारी इन सब की practice करें along with the your calculator और सारी values find out के. In case अगर आपको नहीं कोई चीज़ आ रही तो आपकी जो बुक्स हैं या आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो आपकी बुक जो मैंने पहले भी बताई थी यूजीन एफ ब्रिगम की एंड वैन हॉर्न की या कोई भी और फाइनेंस की बुक लेने तो उसके एंड में आपके हर बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर होगा. उसके एंड में जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं. इसके अलावा आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इन एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर बॉन्ड यूजिंग यील्ड टू कॉल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी. And you must have your paper, your pen and your calculator. Thank you.